Hey everyone, welcome to the Goated DSA grind, and I hope you are live. Let me check once. Is the sound clear? Yeah. So today we'll be continuing with the fourth part of the trees section in the data structures and algorithm chapter, and we have three more questions to discuss, and this will probably be the last session that will cover on trees. Okay. So this is the fourth session on trees. Previously, we have seen many other, you know, concepts on trees, starting with the concepts and then with the problems, DFS, BFS, and certain algorithms. So by now, I think if you have followed through this course, you are very familiar with depth first search, breadth first search, and how we do it recursively and iteratively as well. Like for depth first search, we are using stack. For breadth first search we use queue and stuff, so that I think you are now familiar with. The first question that we'll be discussing today will be uh, level order traversal. Okay, level order traversal, we have also seen this in one of the previous questions that we have discussed. So this is interrelated. Now every question that we are solving and every question that we have solved already, there is a clear pattern that you can recognize, right, on how to traverse a tree. And generally, the questions that are made with trees as a genre of the question, then uh, that question revolves around traversals only. Okay, generally, all the traversals, that is BFS and DFS. Plus, it also involves the concept of stack, queues, binary search trees, binary trees, and yeah, height, depth of the tree, and the concept that revolves around the trees also. So that is also covered. Okay, so this is the first question that we'll be discussing today, binary tree, level order traversal. Then we'll be discussing binary tree right side view, binary tree right side view. And then if we have time, we'll be discussing the third question of the day, that is counting good nodes on a binary tree, right? Counting good nodes for binary tree. Now what these all are, we'll see one by one, and let's get started. Okay, so the first question for today will be level order traversal. So as we have discussed previously, there are certain types of traversals in a tree. The first one is in order. Then we have pre-order traversal. The third we discussed about post-order traversal, right? You can get the reference from here. This traversals in order, pre-order, post-order. So of course there is this level order traversal also, which we have discussed earlier. Level order traversal. This is quite simple. It just says that whatever level you are considering at one point, write all the nodes of that particular level, in a single data structure or in a single as a single element. Okay. So if this is A, this is B, C, D, E, F, and G. So we go level by level. So we write A, we write B, C, we write D, E, F, G. Okay, so this is what level order traversal is, and this is what particularly our question says, that given the root of a binary tree, imagine yourself standing. Oh, sorry, this one. Given the root of a binary tree, return the level order traversal of its node values. Example from left to right and level by level. Okay, so in this case, what we will be getting in return: 3, 9, 20, 15, and 7. Okay, 3,
9, 20, 15, and 7. And mind you, these are all different, you can say, vectors inside a bigger vector because we have to return vector integer, right? So first let's go on, go with the structures that we are going to use in this particular problem. Let's copy this and paste it there. Okay, cool. So since we are told that we have to use vector integer, now it has been quite clear that जब भी हम लोग ये travel कर रहे होंगे, so in a bigger vector we'll have smaller vectors of elements, or rather nodes, that belong to a particular level. Okay, right? 3, 9, 20, 15, 7. Now when we go on and think of the solution, how we do it. So see, there are two ways. Of course, one way is that you go level by level. ठीक है, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, or you write it down in different vectors. The second way is you traverse using DFS, right? Using recursion, that will shorten our code, and you will traverse every node using recursion. But now there is a problem if you use DFS, that is recursion. So in 3, 9, 20, 15, and 7, if you use DFS and you write that first you go left, then you go right. तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि सिंस इट्स अ रिकर्सिव कॉल, राइट, ये एक रिकर्सिव कॉल है, तो जब भी फंक्शन कॉल हो रहा होगा, यू विल ऑटोमेटिकली विदाउट रजिस्टरिंग 3 यू विल स्टार्ट रजिस्टरिंग 9, एकदम एंड तक जाएगा लेफ्ट में पहले, ठीक है? बट हमें तो पहले 3 लिखना है, फिर 9 लिखना है, 20 लिखना है, 15 लिखना है, 17 7 लिखना है। और अगर हम लोग लेवल ऑर्डर मतलब डीएफएस लगा दे, विच इज योर लेफ्ट, ओके, जो कि पहले पूरा लेफ्ट जाएगा, तो हमारा दिक्कत क्या होगा कि विल बी डूइंग 9, then we go back to 3, then we go back to 20, then we go back to 15, we go back to 7, then we go back to 3, and then we go back to 20, ऐसा कुछ हो जाएगा ना? बट अभी इसमें इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये इस फॉर्म में तो हमें नहीं चाहिए आंसर, ठीक है? सो विल हैव टू स्टोर दिस पर्टिकुलर recursion that we follow according to the depth of the tree, ठीक है? मतलब जब भी डेप्थ यहाँ पे एट द रूट पोजीशन पे हो, 1 हो, ठीक है, डेप्थ इज 1, तो सिर्फ 3 रहे, डेप्थ जब 2 हो तो 9 और 20 आए, और डेप्थ जब 3 हो तो 5 और 7 आए। सो यहाँ से दो चीजें पता चले, पहले तो ये फॉर्म जो हमें यूज करना है, सेकंड दैट वी नीड टू कंसिडर डेप्थ ऑफ द ट्री इन डीएफएस, ओके? एंड थर्ड की हम लोग नॉर्मली इसको लेफ्ट राइट चलाएंगे, बट अब जब जब तुम्हारा डेप्थ इज इक्वल्स टू द साइज ऑफ द ये रहेगा, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, see, for 3 the depth will be 1, for 9 the depth will be 2, for 20 also the depth will be 2. So whenever the depth is same, we will be pushing it into the same vector, okay? And when the and as we traverse and we go down, so we increase the depth, ठीक है? तो ये चीज है। अभी इसको कोड में कैसे करने का है ये देखते हैं पहले। So first of all, we'll let's say have a function, ठीक है, which goes with root, और starting with the depth अभी 0, अगर if we count the start to be 0, तो ये 0th इंडेक्स हो जाएगा, ये फर्स्ट इंडेक्स हो जाएगा, ये सेकंड इंडेक्स हो जाएगा इनसाइड अ पर्टिकुलर वेक्टर, राइट? And now how the DFS function will look like? It will have a tree node pointer, of course, because root is a address to the root node. Let's write node here, and we have depth, ठीक है? ये हो गया। अभी we see that if the node is not present, since हम लोग को एक वो लिखना होगा ना, base condition, since this will be a recursive call, so the base condition is that if node is not present, then you return null. uh, one sec, ये तुम्हारा क्या होगा रिटर्न वैल्यू?
void 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 यहाँ पे void होगा, so you will directly return. ठीक है, ये हमारा बेस कंडीशन हुआ. अभी जब जब इफ रिस्पॉन्स का साइज और रादर रिजल्ट का साइज जब भी डेप्थ के इक्वल होगा, ठीक है, ये जो डेप्थ हम लोग पैरामीटर पे ले रहे हैं, जब ये जीरो पे आएगा, तो मतलब फॉर अ पर्टिकुलर डेप्थ यू विल बी पुशिंग इट इनटू द वेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर डेप्थ ओनली, राइट? ओके, सो you just need to write that result का depth dot pushback because there is a this form is vectors of vector v of v ऐसा कुछ है ना, तो अंदर भी एक वेक्टर रहेगा, तो हम इस वेक्टर में पुश करेंगे. और इस वेक्टर का ये क्या रहा होगा, मतलब इंडेक्स. इंडेक्स ये जैसे हमने यहाँ लिखा है 0 1 2, so this will be the depth of the tree, right? So res of depth dot pushback, and then you will push back what the value of the node, so node का value. ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट जाएंगे विथ डेप्थ +1. ये रिकर्शन है और एक कॉल बैक होगा वहां पे, और इसके लिए हम लोग राइट जाएंगे नोड के. ठीक है, नोड के राइट जाएंगे विथ अगेन डेप्थ +1. ये हम लोगों ने पहले ही कर रखा है ये वाला चीज, डेप्थ +1 वाला. अगर क्विकली फिर टेक अ लुक, कहाँ पे था. सी दिस इज द एग्जैक्ट सेम थिंग इफ यू हैव सीन दिस, राइट? ये कौन सा क्वेश्चन था, मैक्सिमम डेप्थ वाला ना? हाँ, तो इसमें हमने क्या किया था कि हर बार डेप्थ डेप्थ जैसे जैसे अंदर मतलब, और we go deeper inside the nodes, so you need to increment the depth by 1. Okay, that's it. That's exactly what we are doing today in this particular recursive call. Okay, or if res dot size, that is results dot size, equals to the depth, so तुमको पहले क्या करना पड़ेगा कि you'll have to create a new vector, मतलब एक वेक्टर के अंदर वेक्टर्स है ना, तो जब भी एक नया डेप्थ आएगा, दिस इज डेप्थ 0, दिस इज डेप्थ 1, नाउ व्हेनेवर डेप्थ 2 comes, then what do you need to do when, अभी तो हमारे रिजल्ट में मान लो ये दोनों डेप्थ है, मतलब हमने ये दोनों लेवल कंसिडर कर रखा है, बट एक और लेवल आता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा कि व्हेन रेस्ट डॉट साइज विच इज हियर 2 इज इक्वल टू द डेप्थ, डेप्थ क्या है 2, तब क्या करेंगे हम लोग एक और वेक्टर इनिशियलाइज करेंगे, दैट इज वी इनिशियलाइज an empty vector. Okay, rest dot pushback underscore, what do we push back a vector integer, and this is an empty vector, so this is basically appending. ठीक है, ये append कर रहा है और कुछ नहीं, ये वाला particular part, हर एक नया डेप्थ के लिए चीजें append हो रही है, और फिर ये particular डेप्थ पे push कर रहा है, so you push at particular depth. ठीक है, मतलब तुम समझ रहे होगे कि हो क्या रहा है, जब जब हमारा रिजल्ट डॉट साइज जो है वो डेप्थ के बराबर है, सो यू नीड अ न्यू एम्प्टी वेक्टर. ठीक है, जब तुम नया डेप्थ डालोगे, ठीक है, जो भी नोड्स आएगा वो डालोगे, तो बस ये है जो कि वी आर यूजिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च. बीएफएस में तो क्वाइट सिंपल कि यू गो लेवल बाय लेवल, ऐसे बीएफएस में होगा, बट डीएफएस हम लोगों ने देख रखा है, अगला बार बीएफएस देखते हैं. बट इसको कोड कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कॉलिंग वो डीएफएस वाला फंक्शन, ठीक है, विद रूट एंड 0. ठीक, अभी 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 इसको रिजल्ट रिटर्न करना है ना, सो वी नीड टू हैव समथिंग लाइक दिस. ठीक है, ये क्यों रखा हमने, क्योंकि वी आर कॉलिंग अ डिफरेंट फंक्शन. ठीक है, अभी ये जो फंक्शन है, वन सेकेंड,
ये जो फंक्शन है, this should have access to this, and since you are returning the vector, so even this should have access to this, and that's why we have declared a member variable that is res. Now we are returning res here, ठीक. But अभी इसका एक void dfs, we name pointer node, and we have depth, ठीक है. हो गया. अभी तो पहले की वो बेस कंडीशन जो हमारा होता है कि अगर नोड ना हो तो यू सिंपली रिटर्न, जो यहाँ लिख के रखा है कि अगर नोड ना हो रिटर्न कर दो. इफ res dot size equals to depth, so we need to make create a new uh, we need to append, right. depth के बराबर हो तो res dot push back, क्या पुश करेंगे, एक वेक्टर इंटीजर जो कि खाली रहेगा, ठीक है. अभी res of depth में पहले तो सारा एलिमेंट्स पुश बैक कर लेंगे, तो उसका वैल्यू, और अभी रिकर्सिव कॉल होगा, ठीक है. तो अभी कॉल कैसे करेंगे, डीएफएस को कॉल करेंगे विथ नोड का लेफ्ट के साथ एंड डेप्थ प्लस वन के साथ, एंड नाउ द सेम थिंग बट विथ राइट. हम्म. इसमें बस दो ही चीज है, बाकी सब सेम है. सिर्फ क्या चेंज किया, यहाँ पे अपेंड किया और यहाँ पे पुश किया, बस यही चेंज है. बाकी अगर तुम देखोगे इस कोड में और इस कोड में देयर इज नो डिफरेंस. तो तुम पैटर्न भी समझ रहे होगे कि ऐसा ही है चीजें. यू गो लेफ्ट, यू गो राइट, एंड यू डू ट्रैवर्सल्स, ठीक है. देखो इसमें इसमें कोई चेंज नहीं है. इफ नोड एग्जिस्ट देन इसके अकॉर्डिंग ये चीज था कि तुमको ये अपडेट करना था. हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे ये चीज है कि हमें ये पुश बैक करना है, ठीक है. और यहाँ पे पुश किया नोड का लेफ्ट डेप्थ प्लस वन के साथ, और यहाँ पे ये किया. यहाँ पे ऐसा क्यों रखा था, क्योंकि ये पेयर में था. हाँ पेयर में था. और यहाँ पे हमारा वेक्टर वेक्टर है, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस एज एज इंडेक्स, रेफरेंस टू इंडेक्स, एंड दिस एज द वैल्यू टू बी पुश्ड बैक, ठीक है. एक बार क्विक चेक दे दो, रन करके देखते हैं. hmm? Runs perfectly fine. I guess it will be submitted. Okay, good. It does, and this DFS, I don't know if it's. I think this should be the optimal case only because order of n. Order of n. जितना ट्रैवर्सल किया है, जितना नंबर ऑफ नोड्स है उतना तो ट्रैवर्स किया है ये. अब इससे बेटर तो ऑर्डर ऑफ एन से बेटर पॉसिबल नहीं है, बट ठीक है, इसको देखते हैं. 1 सेकेंड. ओ ये कहाँ पड़ गई. सो ये रहा कोड. और सिर्फ सिर्फ ये वाला जो कॉल है, ये तो एक ही बार यहाँ पे कॉल होता है, बट यहाँ से जो कॉल्स हो रहे हैं वो o ऑफ n माइनस वन टाइम्स हो रहा है. दिस इज o ऑफ n माइनस वन टाइम्स, एंड दिस इज o ऑफ वन, जो कि सिर्फ रूट के लिए हो रहा है. तो इफ यू ऐड इट यू गेट एन ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ o ऑफ n, ठीक है. और ये तो सिर्फ एक एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेप्थ जितना है, द डेप्थ ऑफ द रादर यू कैन से द हाइट, उतना बार ये रन हो रहा है, ठीक है. एक डेप्थ देखो, डेप्थ और हाइट में क्या डिफरेंस है ये बता दे. देखो लाइक कि अगर एक ऐसा ट्री है ना, सो फॉर दिस पर्टिकुलर नोड दिस इज गोना बी द डेप्थ, दिस वन. इसमें एक कंफ्यूजन होता था, मेरे को भी था
इसको डेप्थ बोलेंगे, और अगर कुछ एक पर्टिकुलर नोड का हाइट का बात किया जाए तो ये उसका हाइट होगा, ठीक है, कि वो कितना मतलब ये है उससे, द लीफ नोड्स कितना दूर है, ठीक है। या दिस इज इट, और तो कुछ नहीं है वैसा। इसका लेट्स नाउ लुक एट वो कौन सा अप्रोच बचा, बीएफएस राइट। अभी बीएफएस में हम लोग क्या यूज करते हैं, क्यू यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे भी क्यू यूज करेंगे, बट इसमें है कि विल हैव टू सी कि कैसे करेंगे। तो देखो, अगर ये हमारा इतना नहीं लिखते, जो हमारा वो था 3 9 20 15 17 9 20 15 7। तो हमें तो ये एक एक बात तो पता है कि ठीक है, हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर को लेके चलेंगे। अभी क्यू कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। सो और हमारे पास एक वेक्टर है खाली पूरा, ठीक है, अभी एम्प्टी है, इनिशियलाइज किया हुआ है बस। अभी जैसे हमने 3 डाला इसमें, तो हम देख पा रहे हैं कि फॉर अ सर्टेन लेवल व्हाट इज देयर इन द क्यू, दैट इज ओनली 3, ठीक है। सो वी पॉप आउट एंड स्टोर 3 इन अ पर्टिकुलर वेक्टर। अभी इन दिस आफ्टर वी हैव पॉप्ड आउट 3, वी आर स्टोरिंग 9 and 20, ठीक है। सो 9 and 20, और हमने देखा कि अभी इसका और कोई चाइल्ड नोड्स है नहीं, तो यहाँ पे स्टॉप किया। बट देखो, अभी अभी हम लोग 9 को भी पॉप करेंगे, 20 को भी पॉप करेंगे, बट क्या है कि दोनों को साथ में करेंगे, तो 9 और 20। अभी 9 को जब पॉप किया तो सिर्फ पॉप होगा क्योंकि इसके इधर इधर कुछ नहीं है। बट 20 को जैसे किया तो हमारे पास आया 15 और 7, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट इटरेशन में क्या करेंगे, 15 और 7 को भी पॉप कर देंगे। सो ये हमारा पूरा आंसर बन जाएगा। तो क्या करना है कि जब तक क्यू एम्प्टी ना हो, ये हमारा क्यू है, जब तक एम्प्टी ना हो, वन क्राइटेरिया, प्लस जब तक क्यू का साइज है, मतलब जब हमने 3 डाला तो हमारे क्यू में क्या होगा, 3 होगा सिर्फ। और 9 और 20 डालने के बाद तो हमने उसको पॉप आउट कर दिया, तो बचा क्या, सिर्फ 9 और 20 क्यू में, ठीक है, सिर्फ ये बचा। तो जब तक पहले तो एक ये चलेगा कि वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, ऐसा, एंड देन यू विल हैव टू स्टोर द साइज ऑफ द क्यू। व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब तक हमारा साइज खत्म ना होता है, तब तक वी हैव टू इंक्रीमेंट थिंग्स इन दैट पर्टिकुलर इंडेक्स ओनली, मतलब सेम इंडेक्स में इंक्रीमेंट करना होगा इस पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए, ठीक है। तो i is equals to 0, I is less than this particular size, I plus plus of course, and here what we'll have to do is we'll have to insert this into this and this। और एक बार ये वाला खत्म हो जाएगा, तब हम लोग सीधा सीधी रेस्ट में पुश बैक कर पाएंगे। जो भी यहाँ पे एक वेक्टर इनिशियलाइज करके उसमें सारा एलिमेंट्स पुश किया हो, और वो वेक्टर को यहाँ पे हमने वापस भेज दिया, ठीक है। समझे क्या हुआ, एक पर्टिकुलर पॉइंट में क्यू में उतना ही वेरिएबल होगा जितना उसमें लाइक जितना एक लेवल में नोड्स है, उतना ही वेरिएबल होगा, मतलब उतना ही वेरिएबल पॉप होगा। सिंस हम लोग ये चला दे रहे हैं ना, हर बार साइज भी तो चेंजेस हो रहा है। लाइक you had 9 and you had 20 in the queue, but since you are encountering 20, once you pop 9, after 20 we have 15 and 7, but you will only pop 20 because why, because the previous time when you stored the size, you had only 9 and 20 in the queue। समझ रहे हो क्या बोले। So you are gonna pop in a single traversal only 9 and 20 and not 15। 15 अगला बार वापस से साइज रिकॉर्ड होगा, और 15 और 7 जाएगा। ये कब तक जाएगा, जब तक क्यू यहाँ पे मतलब खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो बस यही है इसका कोड, और लेट्स सी हाउ वी आर गोना लाइक राइट इट डाउन। इसको तो इसको तो रीसेट करते हैं। हम्म, तो अपने को क्या क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिटर्न करना है वो चाहिए। तो रिटर्न क्या करना है अपने को, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंटीजर रेसी मानते हैं। ये चाहिए अपने को, एक क्यू चाहिए। नाउ व्हाट इज द क्यू स्टोरी, टेक अ
मोमेंट एंड थिंक, क्यू में हम लोग क्या डालेंगे, सारा नोड्स डालेंगे ना। और नोड्स कहाँ स्टोर्ड है, ट्री पॉइंटर में, मतलब ट्री नोड के पॉइंटर में। तो ये उसका क्यू बनेगा, लेट्स नेम इट क्यू। अभी क्या चाहिए, एक एक करके चलते हैं, ठीक है। रेस बना दिया, हमारा एक क्यू हो गया है। तो अब क्या करेंगे, थ्री को क्यू में डालेंगे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थ्री जाएगा, तब तो हम लोग ये वाला, नहीं तो ये कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। क्यू इज ऑलरेडी एम्प्टी, सो दिस विल ऑलवेज बी ट्रू। और नॉट ऑफ क्यू विल ऑलवेज बी फॉल्स, तो ये वाला पूरा चलेगा ही नहीं कहीं। तो पहले तो रूट को एंटर कराना है, राइट। सो क्यू डॉट पुश रूट, ठीक। इतना दूर तक हो गया। अभी वंस द रूट इज इनसाइड द क्यू, you can directly write while q is not equals to empty, ठीक। अभी थ्री हमने डाल दिया, तो क्यू क्या है हमारा, थ्री है। साथ के साथ इफ यू फॉलो यू विल गेट टू नो। अभी क्या करना है, थ्री को पॉप करके वो जो रिजल्ट है हमारा उसके एक सिंगल एलिमेंट में डालना है, ठीक है। और जो नेक्स्ट है थ्री के साथ, तो थ्री को तो पॉप कर दिया है, बट थ्री के बाद जो 9 एंड 20 है वो क्यू में इंटर कराना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक साइज लेंगे, इंट क्यू साइज बोल दो, इज इक्वल्स टू क्यू डॉट साइज। और फिर वही जो बोला हमने, लूप चलाना है, क्योंकि पॉप कितना बार करोगे, जितना साइज है उसका एक्चुअली। साइज लेस देन क्यू डॉट साइज, rather क्यू साइज हियर, राइट। अभी क्या करना है कि पहले तो थ्री को उस वेक्टर में डालना है जो कि यहाँ पे इनिशियलाइज होगा, और अगर यहाँ नहीं इनिशियलाइज होगा, बाहर में इनिशियलाइज होगा, ताकि उतना बार वो वेक्टर में डालना भी तो है। सो यहाँ पे एक वेक्टर ले लो, वेक्टर सारा लेवल के लिए विल स्टोर इंटीजर, राइट, इंटीजर वैल्यूज, कॉल इट लेवल, लेव, ठीक है। अभी क्यू में थ्री है सिर्फ, तो लेव डॉट पुश बाय, रुको, देखो अभी पुश बैक क्या करेंगे, देखो एज वी प्रोसीड वी गेट टू नो दैट व्हाट वी हैव टू डू। सो पुश बैक क्या करेंगे, इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या पुश करना है, किसी एक नोड का जो हम लोग क्यू में डाले हैं उसका वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नोड, तो या तो तुम लिखोगे क्यू डॉट फ्रंट का वैल्यू, ठीक है, या तो ये कर सकते हो। बट देर इज अ वेरी प्रॉपर वे टू डू इट, एज दैट इज टू स्टोर द नोड एंड कॉल इट नोड, स्टोर नोड इज इक्वल्स टू क्यू डॉट फ्रंट। That's the only element that we can access in a queue. That is the front element. और तुम यहाँ पे फिलहाल नोड डॉट पुश पॉप भी करा सकते हो, rather क्यू डॉट पॉप होगा। बट सिंस हमारे पास नोड स्टोर्ड है, अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि नोड का वैल्यू को, हम्म, तो हमने पुश किया नोड के वैल्यू को। नेक्स्ट क्या, कि अगर नोड एग्जिस्ट करता है तो वो डालो, क्या बोलते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट चिल्ड्रंस को उसमें डालो। सो इफ नोड exists, and node will, I guess, exists only for sure. So ये लिखने की जरूरत नहीं है, just write, rather write if node q dot push nodes left q dot push nodes right। ये लिखने का जरूरत नहीं है, wait, ये क्यों नहीं लिख रहा है? अभी ये जब सारा ये हो जाएगा, तो हमें रेस के अंदर
वो वाला पर्टिकुलर वेक्टर जो कि लेव है, इन दिस केस we'll have to push back, और at the end what we need to do is return this. और कुछ है बाकी करने का? I don't think so. Take a look. Note what we are doing here is, हमने नोड पकड़ा, अब इसको तो होल्ड करके रखा है, तो इसको वन पॉइंट पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू दिस नोड, सो वी कैन पॉप इट फ्रॉम द क्यू। ठीक है, क्यू से गया, अभी उस लेवल में इस नोड के वैल्यू को पुश बैक किया सिंस एक लेवल में, और जो उसका चिल्ड्रंस था लेफ्ट एंड राइट वो पुश करा। लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। guess it should. Oh, is there a double underscore? Mm-hmm. What's the issue? Member access null pointer of type tree node. Right. अब क्या दिक्कत हो रहा है इसको? अगर नोड एग्जिस्ट करता है तभी तो बोल रहे हैं कि नोड का लेफ्ट वैल्यू को पुश करो। नोड के वैल्यू को ही तो पुश कराया। इसमें क्या दिक्कत हो रहा है? व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि हमारा जो एक क्यू है ये सारा, ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि क्यू में यहाँ पे एक पर्टिकुलर ट्री नोड पॉइंटर है ना, तो सिंस ये क्यू क्या स्टोर कर रहा है, ट्री नोड के पॉइंटर को स्टोर कर रहा है। सो व्हाट आई एम टेलिंग इज कि यहाँ पे तो हमने एक ट्री नोड पॉइंटर को डाला है जो कि नोड को पॉइंट कर रहा है, एक पर्टिकुलर नोड को। ठीक है, व्हाट माय दिस स्टेटमेंट टेल्स इट टू डू इज दैट यू हैव अ पॉइंटर, ट्री नोड पॉइंटर, जो कि एक ट्री नोड को ही पॉइंट करेगा, और ये जा रहा है क्यू डॉट फ्रंट को, और इसका नाम है नोड। एंड इफ द नोड एग्जिस्ट, व्हाट यू आर ट्राइंग टू इज नोड के वैल्यू को ही तुम जा रहे हो, नोड। ओके, इस नोड के वैल्यू, हाँ तो ठीक ही तो है, क्या दिक्कत है? What's the problem? I don't know what was the problem. Anyways, यहाँ पे देखो सिर्फ एक एक्स्ट्रा आ रहा है, गेस। हाँ हाँ हाँ, सो इट्स ओके, इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं कैसे? हम्म। यहाँ पे एक चेकर डाल दो कि लेफ्ट का साइज इज नॉट इक्वल्स टू 0, तब पुश करना। अभी शायद आ गया बस। तो एक तो तरीका ये है, और कुछ हो सकता है?
ठीक ही है। रन करता हूँ। फाइन। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मेरे को नहीं पता भाई, मतलब ऐसे ही है, ऑर्डर ऑफ एनी होगा इसका बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई थिंक। विल चेक दैट वंस, ओके। लेट्स क्विकली जस्ट कॉपी इट देयर। आई गेट यू नो व्हाट वी आर ट्राइंग टू, ये पता नहीं क्यों फंसा था, नेक्स्ट रन में चल गया, पता नहीं क्यों हुआ था वो। ठीक है। सो अगेन इफ यू चेक, इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ एन होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने एक क्यू बनाया है जो कि सारा एलिमेंट जो भी ट्री में एग्जिस्ट करता है सबको वन बाय वन स्टोर कर रहा है वो। ठीक है। And now while q is not equals to empty, see we are first pushing q root at one element and the rest n minus one element, right? So we have overall the time complexity is order of n elements. ठीक है। और wait, o of n, but we also have this for loop. ठीक है। तो ये कितना बार, ये एक्चुअली ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा इन ब्रॉडर ब्रॉडर केस। ठीक है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। इज इट? हाँ, आई गेस यस। कैन आई एनालाइज अगेन? नो। हाँ, दैट्स व्हाई यू सी वी हैव वेरी पुअर केस। बट ये जो हम लोग का पहले वाला कोड था वो ऑर्डर ऑफ एन पे ही चलेगा फॉर श्योर। एंड लेट्स जस्ट चेक इफ व्हाट्स द बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी और लेवल और ट्रावर्सल। बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर इस ओ बिग ऑफ एन। ठीक है। ओके, द ईच नोड इज इंक्लूड इनटू द क्यू एग्जैक्टली वंस एंड डिक्यूड एग्जैक्टली वंस। सो हाँ, एन स्क्वायर नहीं बट रादर टू एन टाइप का कुछ है। बट ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ एन ही है, मतलब ये लास्ट वाला जो चीज था, एन स्क्वायर नहीं होगा एक्चुअली। क्योंकि तुम देखो एन बार तो पुश हो ही रहा है फॉर श्योर, बट कितना बार पॉप आउट हो रहा है वो भी एन बार ही हो रहा है ना मैक्स टाइम। एन प्लस एन यू कैन कॉल इट एज टू एन, एंड टू एन एज बिग ऑफ, तुम वो देखोगे असिम्प्टोटिक नोटेशन में देखोगे तो बिग ऑफ एन ही आएगा उससे। ठीक है। These are the two ways of solving this binary tree level order traversal, either by recursion or using queues. Now let's move on to the next question. ये बहुत इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बाइनरी ट्री राइट साइड व्यू। इसको देखता हूँ। ठीक है। Given the root of a binary tree, imagine yourself standing on the right side of it. Return the values of the nodes you can see ordered from top to bottom. Okay, quite simple. Given this kind of a tree, what will be the view from the right? खुद से सोच के देख एक बारी। मुझे ये वाला तो पक्का दिखेगा। So this is one. I'll see this. This is two. I'll see this. This is three. And I'll see this. This is four. राइट साइड में यही दिखेगा, बाकी सब ये दोनों ब्लॉक्ड व्यू में आएगा। ठीक है। सो हमें ये इन ऑर्डर ऐसे ऐसे रिटर्न करना है। ठीक है। ठीक है। तो ये कैसे कर सकते हैं? पहला चीज तो एक थॉट ये आता है कि जो भी करा लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, मतलब ये लेवल एक ट्रैवल करो, ये लेवल दूसरा ट्रैवल करो, ये तीसरा ट्रैवल करो और ये चौथा ट्रैवल करो। और ट्रैवल करने के बाद जो सबसे राइट में आता है, ओके, उसको तुम वेक्टर में पुश कर दो। दैट इज वन वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन एंड दैट इज अ करेक्ट वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन, कि यू आर डूइंग बीएफएस एंड यू आर एडिंग एवरी राइट एलिमेंट और अदर राइट नोड्स। दैट इज वन वे। इसको हम लोग डीएफएस से भी कर सकते हैं। कैसे? उसमें भी बट वी हैव टू स्टोर डेप्थ साथ के साथ, की इसका डेप्थ क्या है, जैसे हमने इट्स वेरी सिमिलर टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जैसे हमने देखो यहाँ पे डेप्थ भी स्टोर किया था बट ये डीएफएस है। अभी सारा डेप्थ स्टोर करके हम लोग यहाँ क्या कहते, लेफ्ट गए थे पहले। बट अगर तू खुद सोच यहाँ पे कि अगर तू लेफ्ट ना जाकर राइट जाने लगे, मतलब इस डायरेक्शन में सारा चीज ट्रैवर्स करे, तो सबसे पहले जो भी राइट जाते हुए जो भी नोड एनकाउंटर होगा उसको हम लोग पुश कर देंगे।
ओके, आई थिंक इफ यू आर गेटिंग दिस, हम लोग राइट जाएंगे और सारा नोड्स को जितना भी nodes we will encounter that we are going to push it. Now the code that we are going to have is very similar to this. Just what we need to do is, पहले तो ये तो BFS है, ये तो BFS है, तो क्या कर सकते हैं कि जो लास्ट एलिमेंट, देखो जब हम लोग पॉप कर रहे थे ना, तो वी आर सिक्वेंशियली पॉपिंग इट आउट। देखो यहाँ पे हमारा 9 के बाद 20 पॉप किया था सेम लेवल पे, तो जैसे हमने 20 को पॉप किया, 20 को स्टोर कर लेते हैं, समझे? इसमें क्या किया, 15 के बाद 7 पॉप किया है, जैसे हमने 7 को पॉप किया 7 को स्टोर कर लो। तो अभी हम लोग दोबारा कोड नहीं लिखेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट मारते हैं इधर वाले को, देखते हैं कहाँ पे चेंजेस है। फ्रॉम हियर टू हियर लेट्स जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट हियर। अभी देखो वेक्टर और वेक्टर इंट तो हमें नहीं चाहिए, सिर्फ एक वेक्टर रेस्ट चाहिए, तो इसको हम लोग चेंज करके इसको वेक्टर इंट रिस्पॉन्स बनाते हैं। एक चेंज से यहाँ लगा, ठीक है। क्यू लगेगा, हमने रूट पुश किया है वो भी लगेगा, क्यू का साइज भी लगेगा, ये वेक्टर नहीं लगेगा, ठीक है, इसको हटाओ, ठीक है। नाउ for I is equals to 0, I is less than q dot size, I plus plus. You have a tree node pointer node that points to q dot front. Fine. और we are pushing left and right, so we are pushing the children. But अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक integer ले लेते हैं, name it right is equals to right name करो या right most name कर दो, और इसको क्या करो, node का value बना दो। तो इसका मतलब क्या होगा कि हर iteration के बाद हम राइट मोस्ट चेंज होगा नोड के वैल्यू से, मतलब जो पहला वाला चेंज होगा, पहला राइट मोस्ट इस केस में क्या होगा, हाँ इस केस में पहला राइट मोस्ट देखो 9 जाएगा, सेकंड राइट मोस्ट 20 हो जाएगा, ठीक है। राइट मोस्ट हमने स्टोर कर लिया, अभी यहाँ पे सिर्फ पुश कर देना है। क्या पुश करना है, रिजल्ट डॉट पुश बैक। प्रत्युष, जस्ट 1 सेकंड, गिव मी 1 सेकंड। ओके, आई गेस दिस शुड वर्क, लेट्स चेक। ओ अच्छा, ये तो जरूरी नहीं है, इसको हटाओ। राइट मोस्ट यहाँ एक्सेसिबल नहीं है, सो यू नीड टू हैव राइट मोस्ट। int हटा दो। हाँ, now this should work, but no, wait. लास्ट एलिमेंट 2 बार पुश हो रहा है क्या? हम्म, लास्ट एलिमेंट 2 बार पुश हो रहा है, क्यों? 1 डन, 2 3 डन, 4।
Why is it pushing two times? एक बार एक एलिमेंट लास्ट में बच रहा है, और सिंस ये लूप एक लास्ट बार चल रहा है तो वो पुश कर दे रहा है, बट इसको हटाएंगे कैसे? लेट मी थिंक फॉर वन सेकेंड. Just have to hold the last iteration. One second. If nodes left exists. Mm, right. Mm, इसके बाद एक पॉप लगा देते, पॉप कर देगा वो तो. Again there is a problem. What? Oh, sorry, sorry, sorry. Not inside but outside. This is not a clear good approach, but ठीक है, that's a shortcut. ठीक है, it will work of course, but अगर हमें यहाँ ही कुछ रोकना था तो अब पता नहीं. ऐसे ही ये भी सही है, ठीक है, so it's fine. Works, so works. Okay. I don't know what they have done, uh, but they have done the same thing. That's the same thing. So don't worry about the time complexity. These are depending on multiple factors. This shows you the time complexity. The time complexity what we have achieved is order of n. Yes. Okay. And it's the same. Just हमने right most इसको हटाकर right most store किया और उसको push कर दिया. बाकी सब कुछ same है. So हम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का डालते हैं. The rest you know. लास्ट एलिमेंट को पॉप कर दिया क्योंकि एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ले ले रहा था. एक एक बार कुछ लूप एक्स्ट्रा चल जा रहा था, वो वापस से वही से स्टोर कर लेता राइट मोस्ट वैल्यू. ठीक है. इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जस्ट एज द प्रीवियस कोड इज, एंड द स्टेप कॉम्प्लेक्सिटी इज आल्सो सेम. ये हो गया, ये हो गया. टाइम बचा है 10 मिनट. काउंट गुड नोड्स इन अ बाइनरी ट्री. डू वी सी दिस? Let's keep this for the next class, because again we have 2 3 approaches for this particular problem also, so we won't be able to. You just try this once at home, and this would be a good problem to do. You will be of course able to this. Let me explain the problem once just. Okay. I'll also give you a thoda sa hint which will help you do the problem. Okay. It says that given a binary tree root, a node x in the tree is named good if in the path from root to x there are no nodes with a greater value than x, and then return the number of good nodes in the binary tree. So what we have to do is, suppose we have a tree like this, just a random tree. Okay. And suppose this, if this has to be a good node, okay, if this has to be a good node,
then this particular path from here to here should not have any node value greater than this. ठीक है. What I am saying is, जैसे यहाँ 3 है ना, तो 3 से 3 के बीच में it says कि is good if the path from root to x there are no nodes with a value greater than x. ये x है, मतलब ये भी x से छोटा होना चाहिए, ये भी x से छोटा होना चाहिए. If this is a, this is b and this is x, then a comma b should be less than x. This is the criteria. And now if see, if suppose, yeah, that's the criteria. And if suppose b is greater than x, so यहाँ पे टूट जाएगा, भले ये छोटा रहे. This won't be a good node. For being a good node, this both should be less than x. Rather, whatever nodes you traverse in order to reach from the root to the node, you'll have to check that that particular node is less than x. अभी इसमें क्या कर सकते हैं कि हम लोग रूट से स्टार्ट करो and then you traverse, but you traverse keeping the maximum in mind. मतलब maximum in mind मतलब कि जब तुम 3 में गए तो मैक्सिमम 3 है, जब तुम 1 में आए फिर भी मैक्सिमम 3 है, जब तुम 3 में आए तब भी मैक्सिमम 3 है. So this is a good node. When you are at 3, the maximum was 3. When you are at 4, the maximum is 4. So then this can be accepted as good node क्योंकि root से यहाँ आने में only this is the value that is greater than or equal to this. ठीक है, ये क्राइटेरिया लगाना, हर बार ट्रैवर्सल पे चेक करना है whether or not the value is greater than or equal to that. ठीक है. And you see you have to return the number of good nodes. तो ऐसा कर सकते हो कि एक रिजल्ट को इनिशियलाइज करना 1 से, रिजल्ट को इनिशियलाइज करेंगे 1 से और फिर क्या करेंगे, विल विल डायनेमिकली ये मैक्सिमम को अपडेट करते जाना आफ्टर एवरी ट्रैवर्सल. ठीक है, आफ्टर एवरी ट्रैवर्सल यू विल अपडेट मैक्स, एंड व्हेनेवर you find that you know that this particular value is greater than or equal to the max previous max, so you increment the number of good nodes. मतलब response result को sorry plus plus कर देना. If you are getting what I am saying, तुम traverse करो, but you'll have to use this particular case कि max at a certain level will be max of max level comma उस particular node के value के बराबर. this इसको यूज करके ट्राई करो, हो जाएगा. hmm? Try using DFS plus this. Okay, I'll be uploading these all in the notes in the drive. Okay, you may get the notes from there or the community channel anywhere. If you haven't followed us yet, you can still do it. Okay, you can still do it because every topic that we are starting, okay, every topic that we are starting that only requires your basic knowledge of C++. Okay, बाकी हम I don't expect you to know arrays, linked list, any stuff. You will clearly by um, common sense you will understand that how these particular pointers are working, and that's it. You don't have to remember, or there is no prerequisite for this. We are discussing everything and anything and everything that comes in this particular topic along with the question, so that's beneficial. Yes. Okay, till then, see you. Bye bye. Keep grinding. Thank you. Let's